Welcome to the Mluka Academy. Myself Anil Kumar Khija, your mathematics teacher. So today I will take class 9th Heron's formula. So this is class 9th and topic is Heron's formula. So as we have seen in the previous lectures that this formula is used to find the area of the triangle whose three sides are given. So then we have extended the formula to find the area of quadrilaterals, in which we have seen to find how to find the area of rhombus, trapezium and any other quadrilateral. So we were doing the questions based upon these. So we will continue with the area of the quadrilateral using the Hero's formula, or we can say Heron's formula, or dividing a quadrilateral into two triangles, and triangles, if they are of specific type, either equilateral or isosceles, then we can use the specific formula to reduce our work, and otherwise we will use the Heron's formula if all the three sides are given. So we move to the next question. So first question in this is, a rhombus has perimeter 100 मीटर. एक रोम्बस है, उसकी एक रोम्बस जिसमें सभी साइड्स इक्वल होती हैं. तो हमें क्या दिया है, ए बी सी डी, इसका पेरीमीटर दिया है हमें 100 मीटर, and one of its diagonal is, let us say AC is 40 मीटर. So ये हमें दिया है 40 मीटर, और ये हमें साइड्स हम निकाल सकते हैं इससे. तो इसका क्या निकालना है, फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस. सो इस रोम्बस का हमने एरिया निकालना है. सो रोम्बस की हमें प्रॉपर्टी तो पता है. क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी चारों साइडें सेम होती हैं. अगर चारों साइडें सेम है, अगर ये साइड्स x x x और x हैं, तो इनको सम करके पेरीमीटर क्या बन जाएगा, 4x. पेरीमीटर क्या बन गया, 4x, विच इज गिवन एज 100 मीटर, एंड x विल बी इक्वल टू 100 अपॉन 4. ये 25 से कट हो जाएगा. सो ईच साइड इज 25 मीटर. So this is 25 meter. Now we want to find the area of the rhombus. So for that what we will do, we can see that both the triangles ABC and ADC are having the same dimensions, that is these are isosceles triangles with two equal sides as 25, because all the sides are of 25 meter, 25 meter and 25 meter. So if we find area of one of the triangles, then we can find the area of the rhombus by multiplying it by 2. So what we will do, we find the area of triangle ABC, which is equal to triangle ADC area. So which is equal to, so S will be equal to 25 plus 25 plus 40 upon 2, which is equal to 45. So we find the semi perimeter of this triangle as 45. Now area is given by using Hero's formula is under root S, S minus A, S minus B, S minus C. So area will be equal to under root of S is 45, S minus A, S minus 40 is 5, then 20 into 20. So this will be 9 into 5 into 5 into 20 into 20. So this comes 3, 5 from here, square root is 3. From 2 5s we take 1 5 as square root. From 20 into 20, square root is 20. So this will be your 300
meter square. So we see that area of ABC, area of ADC is equal to 300 meter square. So we can say area of rhombus ABCD. So what will be the area of this rhombus? 300 plus 300 is equal to 600 meter square. So this will be 600 meter square. Then moving on to the next part, the area, find the area of trapezium whose parallel sides are 25 and 13 and other sides are 15 centimeters. Question second, area of trapezium. तो इसमें क्या दिया गया है हमें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में दो जो पैरेलल साइड्स हैं वो क्या है 13 एंड 25. सो हम ट्रेपेजियम यहाँ पे बना सकते हैं. ये तो 13 सेंटीमीटर है और एक ये है 25 सेंटीमीटर. सो इसको ज्वाइन कर लो. ये 15 सेंटीमीटर है नॉन पैरेलल साइड्स, ये भी 15 है. सो ये हमारा हो जाएगा ABCD. तो अब इसको हम क्या करते हैं, एक लाइन पैरेलल ड्रा करते हैं. AD के एक पैरेलल लाइन ड्रा कर दो CE, जो इसको E पे कट करे. सो अगर ये पैरेललोग्राम है तो हमें ये पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है. सो इसको हमने क्या किया, जस्ट लुक केयरफुली. इसमें एक हमने लाइन ड्रा कर दी, इसको ज्वाइन कर दिया C को E से, सच दैट AD इज पैरेलल टू CE. सो तो क्या हुआ, ये हमारा, हम AE और DC तो पहले ही पैरेलल है, अब AD और CE भी पैरेलल हो गए. सो व्हेन टू ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल then the resulting quadrilateral results into parallelogram. We can say that AECD is parallelogram. ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया. तो इस पे अब हम इसको हाइट, इसको H से डिनोट करते हैं, ये ले सकते हैं. अगर ये 13 है तो ये AE भी 13 हो जाएगा और टोटल हमारा 25 है, तो ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 12. अब ये 15 है तो ये भी 15 होगा. सो वी हैव कंप्लीटेड चेंज द ट्रेपेजियम इनटू ए पैरेललोग्राम एंड ए ट्रायंगल. नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल CEB. सो व्हाट विल बी S here? S will be equal to 12, 15 upon 2, this is 42 upon 2, this is 21 centimeter. So this is S. Now we can find the area. Area will be equal to S minus A, S minus B, S minus C. Now we substitute the various values. What is the value for S is 21. 21 minus A is 12, 21 minus 12 is 9, then 6 and 6. So this will result into 6 into 3 will be out, 6 into 3 under root 21, this is 18 under root 21 centimeter square. So this is the area of triangle CEB. Now area of triangle is also equal to, area can also be found by half into 12 into H, which is equal to 18 under root 21. So this cancels with 6. 6H is equal to 18 under root 21 and H will be equal to 3 under root 21 centimeter. So ये हमारी क्या वैल्यू आ गई, 3 under root 21 सेंटीमीटर. सो अब हम इसका एरिया पता कर सकते हैं ट्रेपेजियम का. तो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला हमने देखा था, क्या फॉर्मूला था,
हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। सो वही हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसमें क्या होगा, एरिया ट्रेपेजियम हाफ sum of parallel sides into h. So this will be is equal to half into parallel side कौन कौन सी है, एक तो हमारी 13 है, एक है 25। अब हम कंप्लीट साइड लेंगे ट्रेपेजियम की। सो ये हो गया 13 और 25 कितना हो गया 38, सम हो गया इनटू h कितना है 3√21, ये 19 से कट जाएगा, 19 3 जार 57√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले तो एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला। तो क्या आया, वो ये वाला आ गया। सो ये हमने 3 साइड्स ली इनकी, ये 3 साइड से हीरोन्स फॉर्मूला यूज किया, उससे ये हमारा एरिया आ गया। अब एरिया हमें ये भी पता है इसमें किसके बराबर होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट जो हमने ड्रा किया यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये हमने h की वैल्यू निकाल ली, h की वैल्यू यहाँ पे आ गई 3√21 सेंटीमीटर। अब हम एरिया का ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू h। सो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन सी होगी, एक तो होगी 13, एक होगी 25। सो 13 और 25 को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 38, ये आ गया हाफ, साथ में इसकी h की वैल्यू ये वाली 3√21। सो ये इससे कट गया 19 से, 19 3 जार 57√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये इसका हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया। सो आगे इससे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो उसके लिए इसको रब करते हैं पहले। सो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, सानिया हैज ए पीस ऑफ लैंड विच इज इन द शेप ऑफ ए रोम्बस। सो एक सानिया के पास पीस ऑफ लैंड है जो रोम्बस की शेप में है। क्वेश्चन थर्ड, सो एक ये हमारी शेप है, ये हम ले सकते हैं A B C D, this is rhombus. She wants one daughter and one son to work on the land and produce different types of crop in suffice the needs of their family. So ये इसको 2 हिस्सों में ये बांट रही है ताकि दोनों अलग अलग काम कर सके। She divided the land into 2 equal parts if the perimeter of the land is 400 मीटर। तो इसका पेरीमीटर कितना है 400 मीटर है, और क्या दिया हमें, एंड डायगोनल इज वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 160 मीटर। सो डायगोनल कितनी है 160 मीटर। तो हमने ये पता करना है व्हाट इज द शेयर, हाउ मच एरिया ईच ऑफ देम विल गेट। फाइंड शेयर ऑफ ईच। सो दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो ये जो डायगोनल है ये दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो अब इसमें क्या है, हमने क्या करना है, हमने ये पता करना है क्या शेयर मिलेगा। अब हमारे पास पेरीमीटर क्या है, सो ये रोम्बस है, रोम्बस में क्या होता है सभी साइड्स इक्वल होती हैं। लेट द साइड्स बी x x x एंड x।
अगर हम इसका पेरीमीटर पता करते हैं तो क्या आएगा पेरीमीटर? पेरीमीटर इज x plus x plus x plus x is 4x, but it is given as 400 to us. So x will be equal to 400 upon 4. This will be 100 meter. So ये सारे 100 मीटर हो गए हैं। चारों साइड्स हमारी 100 मीटर है और डायगोनल हमें क्या दी है? 160 मीटर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं दोनों शेयर बराबर है बी डी डायगोनल से, दोनों इक्वल पार्ट्स में बटे हैं क्योंकि दोनों ही एक ट्रायंगुलर पार्ट बन गया जिसकी आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें दो इक्वल साइड्स तो 100 मीटर है लेकिन एक बेस जो 160 मीटर है। तो अब हम एक का शेयर निकाल लें ए बी सी डी और अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। वी कैन राइट नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। क्या हो गया? इसके लिए हम s निकालते हैं। s किसके बराबर आ जाएगा? 100, 100 एंड 160। इसको ऐड कर देते हैं 100 प्लस 100 प्लस 160 अपॉन 2। ये कितना हो गया? 360 अपॉन 2। ये कट जाएगा 180 पे, 180 मीटर हो गया ये हमारा सेमी पेरीमीटर। अब हम एरिया निकालते हैं। एरिया के लिए फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है? ये होता है s मल्टीप्लाइड बाय s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। यहाँ पे ए बी सी साइड्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं। तो एरिया क्या आ जाएगा? एरिया विल बी इक्वल टू s क्या आ गया? 180। अब s माइनस ए क्या होगा? दो बार तो 80 80 आ जाएगा क्योंकि दो साइड्स इक्वल हैं, वो आ गई इनटू अब 160 करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो एक तो हमारा 80 बार आ जाएगा, दूसरा 180 इंटू 20 3600 जिसका हमारा 60 बार आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 4800 मीटर स्क्वायर। सो ये एरिया दोनों का होगा, दोनों एरिया सेम हो गए। ये भी और ये भी किसके बराबर होगा? 4800 मीटर स्क्वायर के। सो ईच देम ऑफ विल गेट फाइंड द शेयर ऑफ ईच इज 4800 मीटर स्क्वायर। ये दोनों का शेयर आ जाएगा, दोनों का इक्वल शेयर होगा यहाँ पे। ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन इज a triangle and a parallelogram have same base and same area। तो इसमें क्या है हमारे पास? एक तो पैरेललोग्राम है, एक ट्रायंगल है। सो जिनका एरिया सेम है, 1 और 2 का एरिया सेम है। 1 एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2। तो उसका एक बेस भी सेम है। तो हमें क्या दिया गया है? इसमें दिया है इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 26, 28, 30। ये क्या है? 26, 28, 28, ये 30 है हमारे पास। तो हमने क्या करना है? हाइट ऑफ पैरेललोग्राम निकालनी है। फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इसको h कहते हैं, तो हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? फाइंड वैल्यू ऑफ h। सो हमें क्या दिया गया? इसमें एक फिगर है जिसमें एक पैरेललोग्राम है, एक ट्रायंगल है और दोनों के एरिया सेम हैं। और सेम एरिया है तो क्या होगा फिर? जो एरिया ट्रायंगल का होगा वही पैरेललोग्राम का होगा। तो हम क्या कहते हैं? पहले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। बेस दोनों का 28 सेंटीमीटर है, ये हमें पता है, ये दिया गया है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? इसमें साइड्स दी हैं तो हम क्या कहते हैं? पहले s निकाल लेते हैं। s विल बी इक्वल टू 28, 26,
30/2 विच इज़ 84/2 विच इज़ 42 सेंटीमीटर। तो अब सेमी पेरीमीटर क्या आ गया हमारा 42 सेंटीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर आ गया, इससे हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला वही है जो यहाँ पे लिखा था, √S, और तीनों साइड्स को S में से माइनस कर देना है। ये हमारा फॉर्मूला है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, S की क्या वैल्यू है 42। अब तीनों साइड्स को माइनस करना है। पहले 30 को माइनस किया 12 आ गया, अब 20 को किया, 28 को किया 14 आ गया, फिर 16 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये 42, 12, 14। सो 42 को लिखते हैं 2 × 3 × 7, ये क्या हो जाएगा 2 × 3, 2 × 3, ये 2 × 7, ये 16 का हम सीधा ही लिख सकते हैं, 16 का तो 4 बार आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, सो 4 बार आ गया, 4 यहाँ से बाहर आ गया। अब एक 7 बार आ जाएगा, एक 3 बार आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा 16 × 3 48 × 7, 48 × 7, so ये हो जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या दिया गया है, एरिया ऑफ वन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा 28 × h, यही होता है ना, साइड इंटू हाइट। सो दिस विल बी 28 × h is equal to area of triangle is 336. So h will be equal to 336/28. So ये कितने पे होगा 7, 4 और 8, और ये नीचे 4 पे जाएगा 12, नो ये 7 पे गया, और ये कितने पे जाएगा 12 पे। सो h कितने बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी वैल्यू h की। Then we move to the next part. So next part में पहले इसको रेज कर दें, फिर हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका क्या है। सो नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन 4th 5th हो गया। सो ए रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 cows टू गेज। सो क्वेश्चन 5th है, इसमें भी एक रोम्बस है जिसमें ग्रास लगा हुआ है 18 cows के लिए। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर, ये 30 मीटर दिया है हमें सभी साइड्स, और वन ऑफ द डायगोनल्स इज लॉन्गर डायगोनल इज 48। सो ए बी सी डी,
लॉन्गेस्ट डायगोनल जो है वो है 48 मीटर। तो इसमें हमने क्या निकालना है, अगर 18 काउस गेज करती है, 18 काउस गेज ग्रास, फाइंड एरिया फॉर ईच काउ टू गेज। तो यहाँ पे क्या है, ये एक फील्ड दी हुई है हमें, रोम्बस शेप्ड की है जिसमें ग्रास लगा हुआ है। सो ग्रास के लिए हमारे पास 18 काउस है जो यहाँ पे चारा चरने आती है। तो हमने ये पता करना है एक ग्रास के लिए कितना अप्रॉक्सीमेटली एरिया है जिसमें वो चारा चर सकती हैं। सो पहले तो अगर हम इसको ये देखें, इसकी दूसरी डायगोनल भी हम बना लेते हैं। सो सेकंड डायगोनल क्या होगी, अगर बी और डी को ज्वाइन करते हैं, ये हमारी सेकंड डायगोनल आ जाएगी। तो ये हमें पता है जो डायगोनल्स है रोम्बस की वो इंटरसेक्ट करती है, बाइसेक्ट करती है एट राइट एंगल्स। सो क्या होगा, ये 28 का अगर हम इस फिगर पे देखें, ये 90 डिग्री बन जाएगा, ये 24 होगा, और ये हमारा x होगा, ये भी x होगा, और ये 30 है। तो इसको अगर हम ले लेते हैं E, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें निकालते हैं इन ट्रायंगल ABE, इन राइट एंगल triangle ABD, we have AB square is equal to AE square plus BE square. So AB square क्या है, 30 square is equal to AE क्या है, 24 square plus BE square. So BE square क्या आ जाएगा, अब this will be 30 square minus 24 square, which is 30 minus 24, 30 plus 24। तो क्या आ जाएगा, BE आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ, ये 6 आ गया, ये 54 आ गया, which is 6 into 6 into 9। सो BE जो हमारा आ जाएगा, जो कि x है, BE x is equal to BE is equal to 6 into 3 which is 18। सो x की वैल्यू 18 आ गई। अब हमें पता है BD किसके बराबर है, BD है 2x के इक्वल, जो कि 2 into 18 36 हो जाएगा, 36 मीटर। अब हमें यह भी हमने पता किया था, रोम्बस का जो एरिया कैसे निकाल सकते हैं, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। वी कैन से दैट एरिया ऑफ रोम्बस is equal to half into product of diagonals। तो क्या आएगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स कितने कितने की है, एक तो है हमारे पास डायगोनल 48, ये वाली, हाफ इंटू AC इंटू BD, ये हो गया हाफ इंटू 48 इंटू 36, ये आ जाएगा हमारा। इसको अगर हम कैंसिल कर दें, ये हमारा आ जाएगा 18। दिस विल बी 18 48 इंटू 18 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया हो गया उस रोम्बस का। और इसको कितनी काउस गेज करती हैं, 18 काउस गेज करती हैं इसको। सो दिस इज मेंट फॉर 18 काउस। सो हमने क्या निकालना है, 8 काउस के लिए। सो 18 काउस के लिए एरिया कितना है, 48 इंटू 18 मीटर स्क्वायर। और एक काउ के लिए कितना आएगा, 48 इंटू 18 अपॉन 18, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 48 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट वी वांट टू फाइंड। एक काउ के लिए कितना एरिया आ जाएगा, 48 मीटर स्क्वायर, जो गेज करने का है इसका एक। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमें क्या दिया गया था, हमने दिया गया था चारों साइड्स दी गई थी जो कि इक्वल होती है 30 के, और एक हमें दी गई थी डायगोनल।
और अब हमें ये भी पता है, ये हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे नोट, द डायगोनल्स ऑफ rhombus bisect each other at right angles। तो ये दोनों डायगोनल्स अपने आप को बाइसेक्ट करेंगी राइट एंगल्स के। जो 48 टोटल है, ये हमारा 24 ये रह जाएगा और 24 ये रह जाएगा, और ये दोनों हमने साइड्स एक्स एक्स ले लिया। अब ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारा ट्रायंगल ABE है जो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें हमने इसकी वैल्यू निकाल ली BE की, फिर उसको डबल कर दिया, वो बन जाएगा BD। फिर हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। सो AC इंटू BD, AC और BD की वैल्यू भर दी, ये हमारा एरिया आ जाएगा टोटल रोम्बस का, जो कि 18 काउस के लिए है। एक काउ के लिए 18 से डिवाइड कर देना है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो दिस इज रिगार्डिंग द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला। सो इसमें और क्वेश्चंस भी हैं, कुछ ट्रायंगुलर बेस्ड ऑब्जेक्ट्स है जिसके हम एरियास निकालेंगे इसको यूज करके। सो आई थिंक यू मस्ट बी फॉलोइंग ऑल द concepts which I are delivering to you. So I think you must be following it properly. In case of any problem, just come to us, follow us, see our videos time and again. In case you find any problem, just contact us. So we will be helpful to you at each and every step. So thank you very much.